বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, ভারতের একটা ইউটিউব চ্যানেল যার নাম স্টাডি আইকিউ এমনভাবে বাংলাদেশ বিরোধী, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিরোধী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করে যাচ্ছে যে বাংলাদেশ খুবই বড় একটা অপরাধ করে ফেলতেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ এর ৩টি পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবনে ১৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে বাস করে চাকমা ৬৫%, মারমা আছে ২০% এবং অন্য অন্য জাতির লোকেরা আছে ১৫%। তো এই স্টাডি আইকিউ ইউটিউব চ্যানেলটা বলতেছে যে এই ৩টি জেলায় ১৩,০০০ বর্গ কিলোমিটারে শুধু কুকি চিনরাই থাকে। আর কুকি চিনরা হলো ভারতের মিজোরাম এবং বার্মার চীন বংশোদ্ভূত জাতি। এর উপস্থাপক অর্থাৎ স্টাডি আইকিউ এর উপস্থাপক অনুরাগ পান্ডে কোনোভাবেই বলছে না যে এখানে চাকমারা বাস করে, এখানে মারমারা বাস করে। এক গড়ে এভাবে বলতেছে যে কুকি চীনরা এখানে বসবাস করে, ১০০%ই কুকি চীন জাতি, অর্থাৎ ভারতের মিজোরাম এবং বার্মার চীন জাতি বংশোদ্ভূত এরা বাংলাদেশে ভিতরে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এরকম বলতেছে এই ইউটিউব চ্যানেলের উপস্থাপক অনুরাগ পান্ডে। আর বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যেতেছে, যার জন্য বাংলাদেশের অংশ থেকে কুকি চীনরা ভারতের মিজোরামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং এর ফলে ভারত সরকার অর্থ সংকটে পড়ে গেছে। কারণ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যে সমস্ত কুকি চীনরা উদ্বাস্তু হয়ে মিজোরামে ঢুকে পড়ছে তাদের জন্য ভারত সরকারকে অর্থ বরাদ্দ দিতে হইতেছে এবং ভারত সরকার এর জন্য তাদের অন্যান্য খাতে যে টাকার প্রয়োজন সেদিকে টাকা খরচ করতে পারতেছে না। এটা ভারত সরকারের জন্য একটা বিরাট সমস্যা হয়ে গেছে। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এই অনুরাগ পান্ডের স্টাডি আইকিউ একটা কি বলে ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং দ্বারা পরিচালিত একটা ইউটিউব চ্যানেল, যারা বাংলাদেশ বিরোধী কথাবার্তা বলে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী কথাবার্তা। স্টাডি আইকিউ এর উপস্থাপক অনুরাগ পান্ডে বলতেছে যে এই কুকি চীনরা ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল সেই ১৯৪৭ সালেই। আর বুঝতেই পারছেন এতে বোঝা যাইতেছে যে ভারতের অন্যরকম একটা মহব্বত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম এর বংশোদ্ভূত লোকদের উপর। আর সেই মহব্বতের খাতিরেই তারা এরকম প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যে এখানে কুকি চীনরা তাদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এদের উপর দমন নির্যাতন চালাচ্ছে, যার ফলে তারা ভারতের মিজোরামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। আর একটা কথা সে বলছে যে বার্মার যে চীন প্রদেশ আছে সেই চীন প্রদেশ এর লোকেরা এই কুকি চীনদেরকে অর্থাৎ বাংলাদেশের ভিতরে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই কুকি চীন বংশোদ্ভূত লোকদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে বার্মার চীন প্রদেশের চীন জাতির ন্যাশনাল আর্মির সৈন্যরা। কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা। চীন ন্যাশনাল আর্মির সৈন্যরা কখনোই বাংলাদেশের এই কুকি চীনদের প্রশিক্ষণ দিতে আসবে না। এখানে ভারতের সৈন্যবাহিনী সরাসরিভাবে জড়িত আছে, আর সেটাই গোপন করে যাচ্ছে এই অনুরাগ পান্ডে। তা না হলে এই ভারতীয় কী জন্য বলবে যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এই পার্বত্য চট্টগ্রামে এর কুকি চীনদের উপর অত্যাচার, দমন, নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।
তারা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর উপর দোষারোপ চালাবে কী জন্য? আর বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এখানে কোনো অভিযান চালায়নি। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এখানে অভিযান চালানো বন্ধ রেখেছে। কিন্তু সেই কথাটা না বলে অনুরাগ পাণ্ডে বলতেছে যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এখানে অভিযান চালাচ্ছে, যার পরে এই এখানকার কুকি চীনরা ভারতের মিজোরামে যায় আশ্রয় নিতেছে। এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা কথা। আর এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে তারা আসলে কি চায়। তারা আসলে চায় এই পার্বত্য চট্টগ্রামের এই অংশটুকুকে সেপারেট করে ভারতের অং ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে। আর বার্মার ন্যাশনাল আর্মি বার্মার এই চীন প্রদেশের লোকদের উপর খুবই আক্রমণ চালাচ্ছে, যার ফলে তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে ভারতের মিজোরামে। এখানে এটা গোপন করেছে এই অনুরাগ পাণ্ডে যে বার্মার ন্যাশনাল আর্মি মিন অং হ্লাইংয়ের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ চালাচ্ছে এই চীন জাতির লোকদের উপর, এবং সে কারণে প্রচুর পরিমাণ বার্মিজ চীন বংশোদ্ভূত লোকেরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে ভারতের মিজোরামে। কিন্তু অনুরাগ পাণ্ডে সেটা না বলে বলতেছে যে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কুকি চীনেরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ধাওয়া খেয়ে ভারতের মিজোরামে গিয়ে আশ্রয় নিতেছে। আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এটা একটা বড় অপরাধ করে ফেলেছে যে বাংলাদেশের ভিতরের অংশের ভিতরে তারা দমন পীড়ন অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে কুকি চীনদের উপর। বার্মিজ এই চীন প্রদেশের চীন ন্যাশনাল আর্মির সৈন্যরা যুদ্ধ করতেছে বার্মার জাতীয় সৈন্যদের সাথে। কিন্তু এই অনুরাগ পাণ্ডে সে কথাটা একবারও বলছে না। অনুরাগ পাণ্ডে বলতেছে যে চীন ন্যাশনাল আর্মি লোকেরা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি চীনদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য, বাংলাদেশ হতে সেপারেট হওয়ার জন্য। এটা আসলে একটা মিথ্যা কথা। আর মিথ্যা কথা না বললেই তো হয় না ওদের। আসলে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে ভারতের সৈন্যরা এই কুকি চীনদের। এখন অবশ্য তারা কুকি চীন বলছে, আসলে এখানে যারা আছে চাকমা, মারমা এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর যারা আছে তাদেরকে এখানে আড়াল করে রেখেছে কুকি চীন শব্দটা ব্যবহারের মাধ্যমে। আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে সন্তু লারমা, যিনি ভারতের একজন নাগরিক, তার কয়েকদিন আগে পাসপোর্ট ছিল না, এখন সে পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছে। এই সন্তু লারমা সরাসরি বলে যে জুমবাসীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা সব কিছু করতে বাধ্য। এই দুদিন আগেও এই জ্যোতিরিন্দ্র বুদ্ধি সন্তু লারমা এবং কিছু সংখ্যক বাঙালি লোকেরাও মিলে ঢাকা শহরে তারা বাংলাদেশ বিরোধী মিটিং করছে। সন্তু লারমাদের যে সাহস আছে, আমাদের বাঙালিদের এখন সেই সাহস নাই। এই ঢাকার মধ্যে আমরা কি পারবো অন্য কোনো দেশের বিদ্রোহীদের জন্য কিছু করতে? আমরা সেটা পারবো না। কিন্তু এই সন্তু লারমারা আমাদের বাঙালিদেরকে নিয়ে এই ঢাকার মাটিতে বসে বাংলাদেশের একটা অংশ তারা আলাদা করার জন্য, বাংলাদেশ হতে আলাদা রাষ্ট্র করার জন্য তারা চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বাঙালিরা তাদেরকে কোনোভাবেই বাধা দিতে পারছি না, তাদেরকে ফেরাতে পারছি। আসলে ভাই, ভারতের টার্গেট হলো এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে কোনোভাবে ভারতের সাথে লাগিয়ে ফেলবে, এবং অটোমেটিকভাবে বাংলাদেশের সামনের যে অংশ আছে চট্টগ্রাম, সেটা তারা হস্তগত করে ফেলবে। এভাবেই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম দুইটাই ভারতের হাতে চলে যাবে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের মানুষ ঘুমিয়ে আছে,
তারা যেন ভারতভুক্ত হতে চায়, অখণ্ড ভারতের অংশ হতে চায়, যেখানে মুসলমানদের গরু খাওয়ার কোনো অধিকার নাই, যেখানে মুসলমানদেরকে যখন তখন হামলা করে মেরে ফেলছে, আর সেই বিধর্মীদের সাথে অখণ্ড ভারতে যোগ হতে চায় বাংলাদেশের বাঙালি কিছু অবুধ মানুষ। বন্ধুরা, কয়েকদিন আগে আপনারা দেখছেন যে ভারতের একটা সংস্থা বিদ্যানন্দ, যারা 1 টাকায় খাবার দেয়, 1 টাকায় আহার, এই পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিতে বসে বিদ্যানন্দ তাদের ভারতের রয়ের অধীন কাজ করে যেত। তারা উপরে জনসভা করত, 1 টাকায় আহার মানে 1 টাকায় খাবার বিতরণ করত, আর ভিতরে এই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিরোধী ষড়যন্ত্র করত। এই বিদ্যানন্দকে সাহায্য করত অনেক বাঙালিরাই। এর মধ্যে একজন হিন্দু ধর্মীয় একজন, যার নাম কিশোর, সে টিভিতে এমনভাবে বলছে, শুধুমাত্র একটা স্কুল বানানোর জন্য এখানকার মানুষ শত শত একর জমি তাদেরকে দান করে দিয়েছে। একটা স্কুল বানানোর জন্য শত শত একর জমি তাদেরকে দান করে দিয়েছে, কিন্তু এর ভিতরে যে কী আছে, এর পিছনে যে কাদের রহস্য, কাদের চক্রান্ত আছে বাংলাদেশ বিরোধী, সেটা কিন্তু কিশোর মিয়া বলে নাই, আজ তারা ধরা খেয়ে গেছে। আর সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে এখন ভারত থেকে প্রচার করছে ভারতের ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি IQ অনুরাগ পাণ্ডে, যার উপস্থাপক, যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী একটা গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই কুকি চীনদের উপর আক্রমণ চালিয়ে। এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা কথা যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এই পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের উপর আক্রমণ চালাইছে, এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তো বন্ধুরা, আমরা সামনে অনুরাগ পাণ্ডের স্টাডি IQর সেই ভিডিওটা দেখব, আপনারা বুঝতে পারবেন যে তাদের ভিডিওর মধ্যে বাংলাদেশ বিরোধী কি কি চক্রান্তের কথা উল্লেখ আছে। आर्ट और ईस्ट पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की थी। जल्दबाजी में बनाई गई ये लाइन हमेशा से इंडिया के लिए समस्या रही है और रिसेंटली ये देखा गया है कि भारत किसी एरिया में मिलिटेंसी की डोर को ओपन कर रही है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आइए समझते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो किसी के हिस्से में खुशी आई और किसी के हिस्से में आया जख्म। खुश वो हुए जो आजाद हुए और जख्म उन्होंने सहे जो बंटवारे के शिकार हुए। पार्टीशन के टाइम कोई भी राज्य जहां किसी एक धर्म की आबादी 35 to 40% थी, वो उसे अपना बनाने में लगे हुए थे। पंजाब और बंगाल, ये 2 एरिया उस समय ऐसे थे जो सबसे ज्यादा बर्बाद हुए क्योंकि इन्हें धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान जब दोनों देशों के बीच रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ होने के बाद मैप जारी किया गया तो ईस्ट बंगाल के एक ऐसे हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया जहां की आबादी में 97% नॉन मुस्लिम्स मौजूद थे। ये एरिया था आज के बांग्लादेश का चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट्स। एक टाइम में यहाँ पर 98.5% बौद्ध और बाकी हिंदू समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन आज बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में लोकेटेड इस रीजन में ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी के ही लोग रह रहे हैं। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस पहाड़ी एरिया के जो लोग आजाद भारत में रहने के सपने देख रहे थे, आज वही भारत के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले बांग्लादेश की इन्हीं पहाड़ियों में रहने वाले कुकी चिन विद्रोहियों पर बांग्लादेश की ओर से एक सैन्य कार्रवाई की गई है और बांग्लादेश के इस एक्शन के बाद सैकड़ों कुकी चिन समूह के लोग अपनी जान बचाने के लिए मिजोरम में एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बांग्लादेश की पहाड़ियां भारत के लिए चिंता क्यों बनी हुई हैं, मिजोरम इसके लिए कितना तैयार है और भारत को इस पूरे मामले में क्या स्टेप लेना चाहिए। लेकिन ये सब जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि ये कुकी चिन समूह के लोग कौन हैं और बांग्लादेश इन पर सैन्य कार्रवाई क्यों कर रहा है। दोस्तों, ये है हमारा खूबसूरत सा मिजोरम, ये है बांग्लादेश का चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट्स और ये है म्यांमार का चिन स्टेट। ये तीनों पहाड़ी एरिया नेचर के काफी करीब बसे हैं। इन तीनों ही रीजन में कई तरह की ट्राइब्स यानी कि जनजातियां रहती हैं और ये सब अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती हैं। इन तीनों कंट्रीज में रहने वाली ढेर सारी ट्राइब्स का एक ग्रुप है और इन्हें ही कुकी चिन ग्रुप के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों, इस ग्रुप का नाम कुकी चिन ग्रुप रखने के पीछे का लॉजिक ये है कि म्यांमार के चिन स्टेट में पाई जाने वाली ट्राइब्स के लिए चिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन रीजन में इन्हीं चिन ट्राइब्स को कुकी के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए इन्हें कुकी चिन ग्रुप कहा जाता है। देखा जाए तो कुकी चिन ग्रुप की ट्राइब्स का भारत की मिजो जनजाति से गहरा नाता है, क्योंकि इनके कल्चर एंड ट्रेडिशन में काफी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में मौजूद चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट्स 13,295 स्क्वायर किलोमीटर की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसके उत्तर में त्रिपुरा, दक्षिण पूर्व में म्यांमार की अराकान पहाड़ियां, पूर्व में मिजोरम की लुशाई पहाड़ियां और पश्चिम में चटगांव जिला मौजूद है। कुकी चिन समूह की ट्राइब्स लंबे समय से बांग्लादेश के इसी रीजन में रह रही हैं और बांग्लादेश की गवर्नमेंट से अपनी अलग अलग डिमांड्स के लिए संघर्ष कर रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस एरिया के लोग आजादी के समय से ही भारत में रहने का इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। 1971 में जब पीएम इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत की मदद से बांग्लादेश एक नया देश बना, तो भी इनकी मांगों को इग्नोर किया गया और इस समुदाय के लोगों को सबसे बुरा तब लगा जब इनके एरिया की जमीनों को बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अलग अलग कामों के लिए अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, तभी से कुकी चिन समूह के लोग अपने लिए अलग राज्य और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखा जाए तो इनकी मांग ठीक वैसी ही है जैसे इंडिया में नागा ट्राइब्स के लोग ग्रेटर नागालैंड की कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के गोरखा जनजाति के लोग गोरखालैंड की और असम की बोडो ट्राइब्स की मांग है कि उनके लिए एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाया जाए। दोस्तों, कुकी चिन समूह के लोगों ने अपने इस डिमांड के लिए साल 2008 में एक कुकी चिन नेशनल आर्मी भी बनाई है और आज यही कुकी चिन नेशनल आर्मी बांग्लादेश की गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी मांगों के लिए लड़ रही है। हालांकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इसे एक विद्रोही समूह घोषित कर दिया है। इसके अलावा कुकी चिन नेशनल आर्मी को म्यांमार की चिन नेशनल आर्मी समूह यानी कि सीएनए सपोर्ट एंड ट्रेनिंग देती रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार की चिन नेशनल आर्मी भी एक चिन एथनिक समूह का सशस्त्र बल है और ये आर्मी भी यही चाहती है कि कुकी चिन ग्रुप के लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए। Mamma, ti sfido. A cosa? Tu vieni e vediamo. Andiamo. Prova a svuotare questa bottiglia d'acqua più veloce. दोस्तों, कुकी चिन लोगों के अलग स्टेट की डिमांड का मेन रीजन जातीय भेदभाव यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है। दरअसल चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट्स के लोग बांग्लादेश के मेन स्ट्रीम सोसाइटी से खुद को अलग समझते हैं। चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट्स आज भी बांग्लादेश का सबसे पिछड़ा और गरीब एरिया है, जहां कुकी चिन ट्राइब्स की 1.8 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और एक्सपर्ट्स की माने तो इस आबादी के 60 से 70 हजार लोग बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं। इस तरह से ये पूरा समुदाय समाज के हाशिए पर है। वहीं दोस्तों, अगर इसे हम इंडिया में देखें तो यहाँ की ट्राइब्स न सिर्फ मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट हो रही हैं, बल्कि इनके लिविंग स्टैंडर्ड में भी काफी इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। दोस्तों, कुकी चिन ट्राइब्स का कहना है कि बांग्लादेश की सेना कुकी चिन समूह के संवैधानिक और मानवाधिकारों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स को एक पॉलिसी के तहत खत्म कर रही है। उनका कहना यह भी है कि सीएचटी की ट्राइबल पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई है, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर कुकी चिन समूह की जमीनों पर कब्जा कर रही है और इसी पहाड़ी एरिया में नॉन ट्राइबल लोगों के आ जाने के कारण सीएचटी की कुकी चिन ग्रुप की ट्राइब्स का अस्तित्व भी संकट में आ गया है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेशी सेना का आरोप है कि केएनए का इस्लामी आतंकवादी समूहों, भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार के विद्रोही समूहों के साथ संबंध है। साथ ही उन पर सीमा पार इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने और बांग्लादेश में नागरिकों की हत्या करने का आरोप भी लगाया गया है। इन सभी आरोपों की आड़ में बांग्लादेश सेना की रैपिड एक्शन बटालियन ने समूहों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। समुदाय के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये संघर्ष पिछले 10 महीनों से जारी है। दोस्तों, बांग्लादेश में चल रहे संघर्ष से भारत के मिजोरम में किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी मिजोरम में रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है। हजारों शरणार्थियों के आवास, भोजन और अदर एक्सपेंसेस पर मिजोरम गवर्नमेंट को 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते बहुत से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भी समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। म्यांमार और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने के नाते मिजोरम इन दोनों ही कंट्रीज से आने वाले रेफ्यूजीज को अपने यहाँ शरण दिए हुए। मिजोरम में म्यांमार के 30,000 से अधिक शरणार्थी रह रहे हैं, जो साल 2021 में म्यांमार में हुए मिलिट्री कू के बाद माइग्रेट हुए थे। इसके बाद अब चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट्स में चल रहे सैन्य अभियान ने
मिजोरम में रेफ्यूजी क्राइसिस को और बढ़ाया है। पिछले साल भी नवंबर महीने में कम से कम 300 कुकी चिन शरणार्थी चटगांव से मिजोरम के लोंगतलाई जिले में पहुंचे थे। इसके बाद ये लगातार छोटे छोटे समूहों में मिजोरम की सीमा में अपने निजी वाहनों से और पैदल चलकर एंटर कर रहे हैं। हालांकि मिजोरम एडमिनिस्ट्रेशन मानवीय आधार पर बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ 1972 में बांग्लादेश के फॉर्मेशन के समय भी हुआ था, जब भारत ने चकमा और हाजोंग रेफ्यूजीज को शरण दी थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोकल पॉपुलेशन और इनके बीच विवाद की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह कुकी चिन रेफ्यूजीज के आने से भारत को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शरणार्थियों की वजह से मिजोरम में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। रेफ्यूजी बनकर आए कुछ अनसोशल एलिमेंट सीमा पार तस्करी और क्राइम के जरिए मिजोरम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल के दशकों में महिलाओं की तस्करी और मानव तस्करी जैसे मामलों में इजाफा हुआ है। दोस्तों, मिजोरम प्रशासन के पास फिलहाल असली शरणार्थी और संदिग्ध में अंतर कर पाने का कोई भी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मिजोरम और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही मिजोरम में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। मिजोरम प्रशासन पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में उस पर शरणार्थियों की समस्या ने भार को और बढ़ा दिया है। इन सब के अलावा दोस्तों, वहां पर सबसे बड़ी समस्या अलगाववाद के खतरे के रूप में देखी जा सकती है। जैसा कि हमने देखा है कि कुकी चिन जनजाति के लोग बांग्लादेश की गवर्नमेंट से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये मिजोरम में रहकर मिजो जनजाति के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही वंश से ताल्लुक रखते हैं। जिसके बाद मिजो जनजाति के लोग भी भारत सरकार से अलग राज्य की मांग कर सकती हैं। और इसके लिए आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा कि पहले भी कई बार भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह देखे गए हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मिजोरम आज के समय में कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वहां सोशल वर्कर्स का एक बड़ा ग्रुप रेफ्यूजीज को शेल्टर देने के काम में लगा हुआ है। जिस तरह श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट और वहां के लोगों में ह्यूमन इमोशन देखने को मिला था, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए मिजोरम सरकार ने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए उनकी मदद की है। दोस्तों, स्टेट कैबिनेट ने रिसेंटली बांग्लादेशी कुकी चिन शरणार्थियों के लिए अस्थायी आश्रयों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। उनके रुकने, फूड, हेल्थ और यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन तक बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। और ये मिजोरम के चंपई और सियाह जिलों में बड़ी संख्या में रह रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो रेफ्यूजीज को शरण देना भारत ने हमेशा से अपना धर्म माना है। लेकिन जैसा हमने पास्ट में देखा है कि बड़ी संख्या में इनके आने से खुद हमारे देश को कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट इस समस्या को कैसे खत्म कर सकती है। दोस्तों, मिजोरम में बढ़ रही शरणार्थियों की समस्या को खत्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर कदम उठा रही है। अब जरूरत है कि इंडियन गवर्नमेंट इस समस्या को खत्म करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बात करे और बांग्लादेश से आ रहे रेफ्यूजीज की घर वापसी के लिए प्रेशर बनाए। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले दिनों चिन कुकी मिजो समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले एक संगठन जोरो यानी कि जो रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही अपील की है। इन सब के अलावा दोस्तों, भारत सरकार मिजोरम में इंस्टेंट सिचुएशन को सुधारने के लिए कुकी चिन शरणार्थियों के लिए सीधे तौर पर राहत और अस्थायी आवास के अरेंजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। राज्य सरकार यहाँ पर रेफ्यूजीज को लिस्ट करने और उनके বন্ধুরা, ভারতের সকল ধরনের চক্রান্ত হতে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে আরও বেশি সংঘবদ্ধ হতে হবে। রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশকে রক্ষা করবে এই আশায় বাংলাদেশের জনগণকে হাত ছেড়ে বসে থাকলে হবে না। বিএনপি বলেন, আওয়ামী লীগ বলেন, সবাই আছে ফাটাবাসি চিপায়, কেউ হা করতে পারবে না। তাই বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে সজাগ হতে হবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আল্লাহ হাফিজ, সবাই ভালো থাকুন এই প্রত্যাশায়।